Hello friends, welcome to my YouTube channel Success Medical Mnemonics, and I am Dr. Anuj Mahendra. I am explaining you an ECG, a very good typical pattern of left anterior hemiblock, and I already made one video for this. Please watch till end so that you can understand it properly. मैं इसे हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा, तो आप शुरू से आखिरी तक देखिए. इसमें ECG के मैं कुछ कंसेप्ट आपको समझाऊँगा. तो ये एक 65 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट का ECG है जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के साथ में आया था, एंड ये नॉन केस ऑफ डायबिटीज़ है. इसको पेस मेकर लगाया हुआ है एम्स में. दिस पेशेंट इज़ नॉन केस ऑफ डायबिटिक, पेस मेकर इम्प्लांटेड इन दिल्ली एम्स, and this patient came with breathing difficulty. So this is the ECG in which I will be explaining you. This is the second lead, which is the rhythm lead. In this we see how we identify this is sinus rhythm. So this is P followed by QRS and then T, P followed by QRS and T, P followed by, in every lead P is followed by QRS and T, P followed by QRS and T. So when you see this pattern P QRS T at regular intervals, so this is sinus rhythm. Also this is VSAR rate, VSAR rhythm. Then we will see rate. How you will calculate the rate in between 2 R complex. See, 1 R complex, 2 R complex, 3rd R complex. So in successive R complexes between 2 R complex there are number of large boxes. कितने होते हैं? 1, 2 and 3, approximately 3.5 large boxes. So we will divide 300 divided by number of large boxes like this. 300 divided by number of large boxes. So this becomes around, if suppose if it is 3 large boxes, then the heart rate is 100. Again here we can see lead 3 में 1, 2 and 3 large boxes. So 300 divided by number of large boxes. So 300 divided by 3. So this heart rate becomes 100 beats per minute around. Now I will explain you this is regular or irregular. So rhythm is regular. Why? Because in between every 2 hour intervals the number of large boxes are coming same, like this. In between 2 hour complex there are 1, 2 and 3, 3.5, 1, 2 and 3, 3.5. Here also 1, 2, 3, 3.5. So almost in every lead between 2 R waves there are fixed number of R large boxes. So the two R waves are equidistant. So this is regular rhythm. And irregular rhythm, in which ECG we see atrial fibrillation, we see irregular rhythm. Now I will explain you after this how to identify axis deviation. So for axis deviation you will see lead 2, 3 and AVF in this particular ECG. Lead 2, 3 and AVF, these are negative. As you can see, the large segment is in the negative, large QRS complex in negative area downward. In this also 2, 3 and AVF, and against this we will see 1 and AVL. So 1, this is upside, and AVL, this is also upside. You can see upside AVL and upside 1. So first and AVL are directing upwards, and 2, 3 and AVF are directing downward. So this becomes the left axis deviation. See, this is left axis deviation in which lead 2, 3 and AVF are negative and lead 1 and AVL are positive. Now we are explaining what? Left anterior fascicular block. In this we have to see 4 things. First, left axis deviation, because it is the pathology of left side. Then we will see RS complex. So what is RS complex? मैम एक सेकंड बस वीडियो बना लो फिर चालू कर दें. So here हमको मिल रहा है RS complex. QR. So in lead 1 and AVL with a small Q wave and tall R wave, you will see QR complex. Here Q is small, so lead 1 and AVL में small Q मिलेगी and tall R is capital. So this is lead 1. The first negative deflection, small deflection, is Q wave, this one, and the large complex which is upward, which is R. So 1, then comes to AVL. Then we come to AVL. Here also you can see the small r, this one is a small q, and this is capital R.
So this is QR complex in lead 1 and QR complex in lead AVL. So first criteria we satisfied, RS complex in QR complex in lead 1 and AVL with small Q wave and tall R wave. So I explained you two things, QR complex and left axis deviation. Now we come to RS complex. So where here R is small and here you saw R is capital, means big R complex. And lead 2 3 AVF we will see small r and capital S. So lead 2, this is small r, and the positive deflection is R, negative deflection is Q, and first negative deflection is Q, then positive deflection is R, and after R which comes is the long negative deflection which is S. So this is how we read the ECG of QRS complex. The first positive wave is always R, first negative wave is always Q, and the wave which is negative which comes after R is S. So 2 में R आप देखिए small है, this is the small r, this is the small r, and this is the small r. So lead 2 small r, and again AVF, these are inferior leads. Now we will see big then we will see S. So negative deflection here is S, this one is negative deflection, and this is S. In lead 2 here also this is negative deflection, this is S, and here is also negative deflection, this is S. So we saw RS, small upward is R positive deflection, long deep negative deflection S, here also R and S, and here also. So 2 3 AVF we saw RS pattern, and 1 AVL we saw QR deflection. So we saw all these 4 points in this ECG. We saw left axis deviation in which 2 3 AVF are negative and lead 1 AVL are positive. Then we saw the other way to understand is this, there is the mnemonic L for left axis deviation and L for leaving each other. So whenever first QRS complex and third QRS complex are leaving each other, as you can see, this is going upward and this is going downward. So this is left axis deviation. If it would have been this way, reaching each other, means ये नीचे जा रहा है and ये वाला ऊपर जा रहा है. अगर ये ऐसे होते एक दूसरे की तरफ आ रहे होते तो ये रीचिंग ईच अदर होते, राइट एक्सिस डेविएशन होता. लेकिन ये लीविंग ईच अदर है, एल फॉर लीविंग एंड एल फॉर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. ये एक दूसरे को से दूर जा रहे हैं. फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपवर्ड जा रहा है और इसमें डाउनवर्ड जा रहा है. सो वी सा लेफ्ट एक्सिस डेविएशन एंड वी सा क्यूआर कॉम्प्लेक्स इन 1 AVL and we saw RS complex in 2 3 AVF with deep S wave. As you can see, there is deep S wave. 2 in lead 2 3 AVF, all 3 leads are showing deep S. This is deep S. This is deep S. So these are the 4 criteria. Now we will see the example given here. See, this is positive in lead 1 and this is negative in lead 2 3 AVF. So this is left axis deviation. Simply इससे भी आप देख सकते हैं lead 1 में QRS complex पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है, और lead 2 3 AVF में नीचे जा रहा है. Also you will see one more point, the R wave peak will be more than 45 millisecond. आर वेव पीक टाइम, प्रोलॉन्ग्ड आर वेव पीक टाइम मिलता है इसके अंदर, जो कि क्यू आर एस के ऑनसेट से शुरू होने से पीक ऑफ आर वेव तक का टाइम होता है. इन ए वी एल मोर देन 45 मिली सेकेंड. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोर देन 45 मिली सेकेंड से 1 2 3 4 लगभग 5 लार्ज बॉक्सेस को इंक्लूड कर रहा है. एक एग्जाम्पल दिखा. दिस इज ऑल्सो सिमिलर ई सी जी 1 एंड 1 से हम कंपेयर करते हैं 2 3 AVF को. सो 1 में QRS कॉम्प्लेक्स ऊपर जा रहा है, 2 3 एंड AVF में QRS कॉम्प्लेक्स नीचे जा रहा है. चालू है ये देखिए, 1 में QRS कॉम्प्लेक्स ऊपर जा रहा है, 2 3 एंड AVF में QRS कॉम्प्लेक्स नीचे जा रहा है. एंड अदर फाइंडिंग्स आर ऑल्सो सिमिलर इन दिस. और कुछ है, हटा इसको.
One more thing, additional point, which is in left ventriculaर block, the QRS voltage in lead AVL may meet voltage criteria for LVH. So LVH लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जो कि मोस्टली देखी जाती है हाइपरटेंशन के केसेस में, वेयर द लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल मसल्स हैज़ टू वर्क हार्डर एंड मोर फोर्सफुली so that the wall thickness increases and there is concentric hypertrophy of the left ventricle, which is shown as LVH. And the criteria for identifying LVH in ECG is R wave height is more than 11 mm, but there will be only LV strand pattern in left anterior fascicular block. Now I will explain you in brief in Hindi. ये एक 65 साल का मेल पेशेंट था जो कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के साथ. So previously I was explaining the LVH criteria in which R wave height is more than 11, but in this but there will be no LV strand pattern. लेकिन इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल का स्ट्रैंड पैटर्न नहीं मिलेगा. किस केस में? लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में. सो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ. इस ECG में 3-4 क्राइटेरिया हैं जिससे हम पहचानेंगे लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक या लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक. ये साइनस रिदम है. इसमें हम सेकंड लीड से इस ECG में या किसी भी ECG में जो सेकंड लीड होती है वो रिदम लीड होती है. इसके अंदर हम रिदम देखते हैं कि ये रेगुलर रिदम है या इरेगुलर रिदम है. तो जैसे कि इसमें P वेव के बाद QRS आता है, फिर T आता है, फिर P के बाद QRS एंड T. तो रेगुलरली P के बाद QRS एंड T आ रहा, तो ये साइनस रिदम है. और इसमें हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम 2 R कॉम्प्लेक्स के बीच में नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस देखते हैं और उसको हम 300 से डिवाइड करते हैं. देखिए, 1 लार्ज बॉक्स, 2 लार्ज बॉक्स, 3 लार्ज बॉक्स और थोड़ा सा और ज़्यादा है तो अप्रॉक्सीमेटली 3 मान के चलिए इसे. तो 300 से हमने नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स जो कि 3 है इसे डिवाइड किया तो लगभग ये 100 आ गया है. ये हर लीड में ऐसे ही मिलेगा आपको. लीड फर्स्ट में भी आप देखिए 2 R कॉम्प्लेक्स के बीच में 1, 2, 3 लगभग 3 लार्ज बॉक्स आ रहे हैं जिसको हमने 300 से डिवाइड किया तो हार्ट रेट लगभग 100 आ चुका है. तो आपको रिदम बता दिया साइनस रिदम एंड ये रेगुलर है और हार्ट रेट की काउंटिंग बता दी आपको मैंने. हार्ट रेट आपको ECG से कैसे कैलकुलेट करना है. अब आप देखेंगे कि रिदम रेगुलर या इरेगुलर, इसको पहचानने के लिए 2 R कॉम्प्लेक्स के बीच में आपको देखना है डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं सक्सेसिव 2 R कॉम्प्लेक्सेस के बीच में. तो ये 2 R कॉम्प्लेक्स से हम रिदम लीड में ही देख रहे हैं. सेकंड लीड में इसमें आप देखिए कि ये 2 R कॉम्प्लेक्स के बीच में 3 लार्ज बॉक्स आ रहे हैं. फिर अगेन ये 2 R कॉम्प्लेक्स के बीच में अराउंड 3 लार्ज बॉक्सेस. यहाँ पे भी सेम कहानी है, 3 लार्ज बॉक्सेस बिटवीन 2 R इंटरवल. अगर ये मान लो इस यहाँ पे 2 R कॉम्प्लेक्स के बीच में 3 होते लार्ज कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे 5 या 6 होते या 4 होते तो वो इरेगुलर रिदम हो जाती. अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको चार चीज़ें देखनी है लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक के लिए. एक तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, वो कैसे देखेंगे कि लीड 1 में QRS कॉम्प्लेक्स ऊपर जा रहा है एंड लीड AVL में QRS कॉम्प्लेक्स ऊपर जा रहा है गोइंग अप. देन लीड 2, 3 और AVF इसमें QRS कॉम्प्लेक्स नीचे जा रहा है पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. ये नीचे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव एंड ये भी नेगेटिव. तो 1 और AVL में पॉजिटिव QRS कॉम्प्लेक्स और 2, 3 और AVF में नेगेटिव QRS कॉम्प्लेक्स. ये पिक्चर देखने को मिलती है तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होता है. इसको आप एक इजी वे में ट्रिक से समझ सकते हैं कि फर्स्ट लीड में QRS कॉम्प्लेक्स ऊपर है, सेकंड थर्ड में नीचे जा रहा है, या थर्ड लीड को ले लीजिए तो ये एक दूसरे को लीव कर रहे हैं. ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ये लीविंग ईच अदर है. L फॉर लीविंग एंड L फॉर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. अगर ये QRS कॉम्प्लेक्स ऊपर जा रहा होता थर्ड में और फर्स्ट में नीचे आ रहा होता तो ये रीचिंग ईच अदर होता, तब ये लेफ्ट राइट एक्सिस डेविएशन होता. अब मैं आपको बताता हूँ आपको बेसिकली दूसरी चीज़ क्या देखनी है. एक आपने देख लिया लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. दूसरा पॉइंट आपको देखना है कि लीड 1 और AVL में QR कॉम्प्लेक्स मिलता है, Q स्मॉल एंड R लार्ज. R ये कैपिटल लेटर R. सो दिस इज़ फर्स्ट नेगेटिव इज़ Q वेव. जो पहली नेगेटिव वेव होती है वो Q वेव होती है, पहली पॉजिटिव वेव R होती है. R के बाद जो सेकंड नेगेटिव वेव होती है डीप वेव, वो S वेव होती है. तो यहाँ पे आप देखिए स्मॉल Q एंड कैपिटल R, बड़ा R छोटा Q फर्स्ट में. देन अगेन इन AVL स्मॉल Q, ये छोटा सा नेगेटिव रिफ्लेक्शन और एक बड़ा पॉजिटिव रिफ्लेक्शन, ये R. तो ये AVL और 1 में QR पैटर्न मिल गया. देन 2, 3 AVF में आपको देखना है RS पैटर्न. R छोटा मिलेगा, मतलब कि छोटा स्मॉल पॉजिटिव R वेव और बड़ा डीप S नेगेटिव वेव. ये स्मॉल R हो गया, यहाँ पे स्मॉल R था, ये बड़ा डिफ्लेक्शन पॉजिटिव था तो ये कैपिटल R था. अब ये जो डीप नेगेटिव वेव आ रही है S वेव है. R के बाद
पॉजिटिव आर के बाद नेगेटिव जो आती है वो एस होती है। तो ये आपको आर एस किस में मिलेगा, लीड 2, लीड 3 एंड AVF। तो 2 में देख लिया हमने, अब 3 में देखिए स्मॉल आर पॉजिटिव जो है और ये बिग डीप नेगेटिव है, ये एस हो गया। तो 2 में देख लिया, 3 में देख लिया। अब AVF में देखिए ये स्मॉल आर है जो कि पॉजिटिव है ऊपर छोटा सा, और ये नेगेटिव डीप एस है। तो हमने देख लिया 2, 3 AVF में, 2, 3 एंड AVF, ये तीनों इन्फीरियर लीड होती हैं। इन्हीं इन्फीरियर लीड्स में हम यदि चेंजेस देखते हैं तो वो इन्फीरियर वाले MI में भी देखने को मिलते हैं, ST एलिवेशन 2, 3 AVF में, या रेसिप्रोकल चेंजेस इन 2, 3 AVF, वहाँ पे ST डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो ये 2, 3 AVF आप याद रखिए कि ये रिप्रेजेंट करती हैं इन्फीरियर लीड, इन्फीरियर वॉल ऑफ हार्ट को, बिकॉज ये फेस करती है इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट। सो इन्फीरियर वॉल या इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ हार्ट के चेंजेस देखने के लिए 2, 3 एंड AVF देखते हैं। वहीं पे यदि हम V1 to V4 देखते हैं तो ये एंटीरियर एंड सेप्टम को इन्वॉल्व करते हैं। तो जब हम MI के एंटीरियर सेप्टम एंटीरियर सेप्टल MI के चेंजेस देखते हैं तो हम इसमें 1, 2, 3, 4 लीड्स देखते हैं। और जब हम इसमें MI नहीं है, मैं आपको जस्ट ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जब हम लेटरल वॉल के लीड्स देखते हैं, लेटरल साइड में कौन कौन सी आती हैं, V4, 5, 6। तो लेटरल वॉल का MI देखना हो तो V4, 5, 6 में ST एलिवेशन मिलता है। वहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स ऐसा जा कर के ST ऐसा एलिवेट हो जाता है बेस लाइन से, और यहाँ पे तो पूरा बेस लाइन को टच कर रहा है, ये ST एलिवेशन नहीं है। तो मैंने आपको इसमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन समझा दिया, 1 एंड AVL में QR कॉम्प्लेक्स, 2, 3 AVF में RS कॉम्प्लेक्स, ये समझा दिया। फिर इसमें आपको देखना है कि AVL में जो हाइट होती है R कॉम्प्लेक्स की, ये मोर देन 45 मिलीसेकंड होती है। ये AVL में R वेव की हाइट मोर देन 45 मिलीसेकंड होती है। इसमें आप काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ लार्ज बॉक्सेस और इसको टाइम से इनटू करके, तो ये आपका निकल आता है। सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and follow me on Insta and Facebook. Thank you very much for watching.